Hello and welcome students. Today we are going to learn tenses. Yes, tenses is not a new topic, but it's a very important topic. So today we are going to talk about tenses. I am sure students that you must have studied tenses during your schooling and you must be knowing a lot about tenses. Alright, so as you know, tenses generally categorized into three parts: present tense, past tense, and future tense or future time. Alright, see, we have the first form of the verb, that is the base form of the verb, and that is called present tense. That verb is present tense. Then we have the second form of the verb, that is called past tense. Then we have the third form of the verb, and that is called past participle. So since we don't have particular exact verb for future tense, and that's why we say it future time, not future tense. So basically tense is categorized into three parts: present, past and future. Each part, each tense has four subparts, that is simple, continuous, perfect and perfect continuous tense. Alright, so let's get started without wasting any time, and we'll start with present tense. And in present tense also we are going to start with the very first part, sub part, that is the present simple tense. You can say it simple present or present indefinite tense. Alright, so let's get started. So dear students, let's talk about present tense. We are going to start with present tense. प्रेजेंट टेंस मीन्स अभी जो टाइम चल रहा है, वर्तमान समय, जिसको हिंदी में कहते हैं. सो प्रेजेंट टेंस, ओके. एंड प्रेजेंट टेंस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डील विद द वेरी फर्स्ट टेंस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑल राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो वी आर गोइंग टू डील विद टेंसेस. टेंस मीन्स टाइम. As I told you earlier, the tense means time. A particular verb form decides time. A particular verb form tells us which is the tense it is, whether it talks about present time, past time or future time. Alright, so tense means time. Even you must have seen the questions like fill in the blanks, the correct form of the verbs. So the questions asking for filling the correct form of the verb, those questions are based on tenses only. Alright students, so let's start with present simple tense. What is present simple tense? Whatever we do generally, usually, regularly. So for example, daily routine. मेरा जो डेली रूटीन है, सुबह उठने का, कॉलेज जाने का, पढ़ाने का, वापस आने का, और आप लोगों का जो डेली रूटीन है, so that daily routine is expressed through present simple tense. Similarly, habitual actions, habit means आदतन जो काम है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई खेलता है, कोई स्विमिंग करता है, ओके, किसी पर्टिकुलर चीज़ की हैबिट होना. सो हैबिचुअल एक्शंस भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. एंड टॉक इन जनरल टॉक करते हैं. हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं. ऑल राइट, कोई खेलने की बात कर रहे हैं, किसी इवेंट की बात कर रहे हैं. ऑल राइट, सो डे टू डे लाइफ में जो भी अकरिंग्स होती है, जो भी हैपनिंग्स होती है, उसकी बात करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है. इसके अलावा जो फिक्स्ड वेल प्लान्ड शेड्यूल्स होते हैं हमारे, कोई एक्शन जो बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में होने वाला ही है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. देन यूनिवर्सल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स वो सत्य जो कल भी सत्य था, आज भी है और कल भी वही रहेगा. मीन्स देयर इज़ गोइंग टू बी नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो बहुत सालों पहले भी सूर्य पूर्व में उदय होता था, आज भी पूर्व में उदय हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी इट इज़ गोइंग टू राइज इन द ईस्ट ओनली. ऑल राइट, सो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, फैक्ट्स, ये सारे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट होता है. ऑल राइट, सो हियर फर्स्ट बात करने जा रहे हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस टॉक्स अबाउट डेली रूटीन,
habitual action, or talk about things in general things, whatever the general things we talk about. Okay, we always talk in present simple tense. So let's start with daily routine. Daily routine means रोज की जो रूटीन है, दिनचर्या है. ऑलराइट, मैंने यूज़ किया आई गेट अप एट 6 AM. 6 AM मीन्स सुबह के 6 बजे. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. दिस इज़ माई रूटीन. ये मेरा रोज का रूटीन है. दैट आई गेट अप एट 6 AM. ऑलराइट, सो सी आई हैव हियर यूज आई गेट अप एट 6 o'clock. सो ये हमारा गेटअप क्या है? गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की. ऑलराइट, सी द सेकंड सेंटेंस. वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर. हम हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं. ऑलराइट, सो ये भी हमारा रूटीन है. डेली नहीं है लेकिन एनुअल रूटीन है. दैट वंस इन अ ईयर वी सेलिब्रेट दिवाली. ऑलराइट, सो वी सेलिब्रेट दिवाली. सेलिब्रेशन करना, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेलिब्रेट. सेलिब्रेटेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड. नेक्स्ट, यू ऑलवेज अटेंड द क्लास. यू ऑलवेज अटेंड द क्लास. तुम हमेशा क्लास अटेंड करते हो. सो इट इज़ योर हैबिट. यू हैव मेंटेन हैबिट ऑफ अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली. गॉट इट? सो दिस इज हैबिट. यू ऑलवेज अटेंड द क्लास. तुम हमेशा क्लास अटेंड करते हो. अटेंड, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे टॉक ड्यूरिंग द क्लास. वे लोग क्लास के दौरान बातें करते हैं. सो दे हैव डेवलप्ड सच अ हैबिट टू टॉक ड्यूरिंग द सेशन. जब भी क्लास चल रही है, सेशन चल रहा है, उनको बातें करनी. कुछ लोग कोने में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग. ऑलराइट, सो दे हैव इवॉल्व सच अ हैबिट. उन्होंने ऐसा हैबिट डेवलप कर रखा है. तो क्लास चलती है और वो लोग बातें करते हैं. दिस इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन. He speaks the truth. So ये talk हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. He speaks the truth. वह सत्य बोलता है. He speaks the truth. ये भी फर्स्ट फॉर्म है speak, लेकिन ये एस भी है. क्या है इधर? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है. सो हियर इधर एस है. He speaks the truth. वह सत्य बोलता है. So see, here we have used first form of the verb, 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 but here we are using first form of the verb plus s or es. Alright, so first form में s और es आता है. It is also called V5, fifth form of the verb. Alright, she sings melodiously. She sings melodiously. Sing और ऐसा वो बहुत मीठा मधुर गाती है. Sings. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और es. राम goes to college daily. राम रोज कॉलेज जाता है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और es. Alright. So here in these three sentences we have used first form of the verb plus s or es, first form of the verb or s or es, or first form of the verb or s or es. So why have we used s or es with the first form of the verb in these three sentences? Now see, I get up at 6 AM. Okay, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. I. So I is the first person. You must have studied persons, first person, second person and third person. I means the speaker, the doer. जो कोई बोलने वाला है या किसी काम को करने वाला है. That is first person. Right now I am teaching. I am teaching you. So I am speaking. I am teaching. I am doing something right now before you. So I am first person. All right. Similarly, we celebrate Diwali every year. हम सब दिवाली मनाते हैं हर साल. So we, when you say we means you along with there are many more people.
in your group, so that is we. हम दिवाली मना, so we itself, it's a big group that is doing something, that is doer, और इसलिए वो कहा जाता है फर्स्ट पर्सन. सो आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए. You always attend the class. You always attend the class. I am talking to you. I am indicating to you. You talk in the class. Okay. You speak the truth. You tell a lie. Okay. You disturb the class. You laugh in the class. तो मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ? आपको कह रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली. आप लोगों से सीधी बात कर रहा हूँ. सो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. यू आर बिफोर मी, इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट्स वाई यू आर सेकेंड पर्सन. ऑल राइट. सो यू इज द सेकेंड पर्सन. देन they talk during the class. They talk during the class. They talk during the class. वे लोग क्लास के दौरान बातें कर रहे हैं. So I am the speaker. I am talking to you and I am talking about. वे लोग क्लास में बातें करते हैं. All right. So मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी और के बारे में. तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में एक इंसान भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं. So जब दे यूज़ किया मीन्स देर आर टू एंड मोर देन टू पीपल. ऑल राइट. सो दे टॉक ड्यूरिंग द क्लास. ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन, बिकॉज आई एम स्पीकर, आई एम स्पीकिंग टू यू एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट समबडी एल्स. थर्ड पर्सन. ओके. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है. वी के आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू के साथ सेकेंड पर्सन, बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव यूज्ड हियर. ऑल राइट. देन विद दे थर्ड पर्सन एंड वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल राइट. हियर ही स्पीक्स द ट्रूथ. वह सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है. इट इज़ हिज हैबिट. ये उसकी आदत है कि वह सत्य बोलता है. ऑल राइट. सो हियर ही के साथ हमने यूज किया है वर्ब प्लस एस और ई एस. ही कौन है? ही स्पीक्स द ट्रूथ. यू स्पीक द ट्रूथ. आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकेंड पर्सन, बट ही स्पीक्स द ट्रूथ. शी स्पीक्स द ट्रूथ. मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट समबडी एल्स. सो ही एंड शी जब भी कहते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन. हम पर्सन से बात नहीं कर रहे, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में. ऑल राइट. अब ही कौन है? सिंगल पर्सन. थर्ड पर्सन हुआ बट सिंगल है. यहाँ पे दे है, थर्ड पर्सन है, बट देर आर टू एंड मोर देन टू. सो ये भी थर्ड पर्सन है बट प्लूरल. इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल. ये क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है बट ये है सिंगुलर. ऑल राइट. सिमिलरली शी सिंग्स मेलोडियसली. वो बहुत मीठा गाती. शी सिंग्स मेलोडियस. शी सिंग्स स्वीट. यू कैन से शी सिंग्स मेलोडियसली. वो बहुत मीठा मधुर गाती है. मेलोडियसली मीन्स समथिंग दैट इज वेरी प्लीजिंग टू लिसन टू. ओके. देयर इज अ ग्रेट प्लेजर इन लिसनिंग. ऑल राइट. तो बहुत मीठा गाती, मधुर गाती है. सो सिंग्स, यहाँ पे भी शी है और इसके साथ हमने यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अलॉन्ग विथ फॉलोड बाय एस. सो दिस इज ऑल्सो शी इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर. राम गोज टू कॉलेज डेली. राम गोज टू कॉलेज डेली. राम डेली कॉलेज जाता है. मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट Ram. Ram goes college. So Ram is a single person. All right. So Ram goes to college, not you. Ram goes to college. So I am talking to you. So I am first person. You are second person. And Ram is third person. हम राम के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं राम से बात करता तो मैं डायरेक्टली कहता तुम तो रोज कॉलेज अटेंड करते हो. बट राम रोज कॉलेज अटेंड करता है. Got it? Because here I am talking about. So ये दे, ही, शी, राम, ये सारे थर्ड पर्सन है.
So whenever there is noun is third person singular noun, we use first form plus s or es. थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं एस और ईएस. दे भी थर्ड पर्सन है बट दे इज प्लूरल. जी स्टूडेंट्स, देयर इज अ कॉमन रूल विथ singular noun we use singular verb. What? With singular noun we use singular verb. With plural noun we use plural verb. Okay, keep it in mind. So with singular noun we use singular verb and with plural noun we use plural verb. So now see here, Ram is a singular noun, single person है. फॉर सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? बाय एडिंग एस और ई एस. जब भी वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं वर्ब बिकम सिंगुलर. पेन्स हो गया तो प्लूरल, बिकॉज पेन इज अ नाउन नॉट अ वर्ब. जब नाउन में एस और ई एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनती है. चेयर्स, पेन पेन्स, फैन फैंस, ऑलराइट, बुक्स. लेकिन जब भी वर्ब में एस और ई एस लगता है वर्ब बिकम्स सिंगुलर. इट मीन्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंग्लिश में वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, बहुवचन फॉर्म में होती है. एंड टू मेक इट सिंगुलर वी नीड टू ऐड एस और ई एस. हमें एस और ई एस ऐड करना होता है. ऑलराइट, सो ये राम के बारे में बात कर रहे हैं. राम गोज टू कॉलेज डेली. सो राम इज अ सिंगुलर पर्सन. सो विद गो वी एडेड ई एस, सो इट बिकम्स गोज. सिमिलरली शी sing, not sing, sings. And he speaks. He speaks. She speaks. Ram goes. They talk, not talks. Why? Because there are two and more than two in there. All right. So they is the plural. So with plural noun we have to use the plural verb. And what is the plural verb? The first form of the verb. The first form of the verb itself is plural. As I told you, the base form of the verb or the first form of the verb is always plural form of the verb. So plural noun है तो plural लिख लिया. Got it? Now see, you always attend the class. तुम रोज क्लास अटेंड करते हो. यू में आप एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, यू में आप पूरी क्लास भी हो सकती है. यू ऑल अटेंड द क्लास. So you is generally always taken for plural form. All right. Whether in you there is one person or more than one, but you is taken for plural noun, and that's why with plural noun plural verb is used, and plural verb first form of the verb. All right. Then we celebrate Diwali. हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. So of course there are more than one. हम कब कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं अपने ग्रुप में तब हम कहते हैं. अकेले के लिए मैं यूज़ करता हूँ. दो हो गए तो हम दोनों, 10 हो गए तो हम. ऑल राइट. सो वी भी क्या है? प्लूरल है. ऑल राइट. सो विथ वी ऑल्सो यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ आई गेट अप एट 6 AM. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. मैं सिंगुलर नाउन. तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब. और सिंगुलर वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा. बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज वी यूज एस और ई एस विथ थर्ड पर्सन. ऑल राइट. वर्ब में एस और ई एस यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ, बट दैट सिंगुलर नाउन मस्ट बी थर्ड पर्सन. हमारा ये आई है. आई ऑफ कोर्स सिंगुलर नाउन है, but it is not third person. I'm talking about myself. All right. So I always takes the plural form of the verb, especially in present tense. Got it? So don't get confused. I is singular noun, but I is the first person. All right. So we
we will use the first form of the verb. With I and we use first form of the verb. You, first form of the verb. With they, first form of the verb. But with he, she or Ram, we use first form of the verb plus s or es. Got it? So singular noun must be singular noun takes singular verb, but singular noun has to be third person. Here I is the singular noun, but I is first person. That's why I first person takes first form of the verb. Alright students, got it? So whenever you add s or es in a verb, it becomes singular. But whenever we add s or es in a noun, it becomes plural. Got it? Is it clear? So with third person singular noun, we use first person, we use first form of the verb with s or es. Got it, student? So see, here we are talking about routine or habitual actions. आपका रोज की डे टू डे लाइफ की जो भी एक्शंस है, जो भी बातें हैं, जो भी काम है, वी ऑल टॉक. ओके, ऑल दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. सुबह उठते हो, कॉलेज जाते हो, खाना खाते हो, वापस आते हो, घर का काम करते हो, खेतों में जाते हो, और भी कुछ काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, टीवी देखते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो. दिस आर योर रूटीन वर्क्स. चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो. ओके, यू मस्ट हैव सीन पीपल स्मोकिंग. सो ये उनकी हैबिट हो गई. किसी को सच बोलने की हैबिट है, किसी को झूठ बोलने का हैबिट है. दैट इज हैबिट. सो present simple tense talk about daily routine, it talk about habitual action. Okay, it talks about universal truth, it talks about scientific facts, it talks about general truth. All right, and it also talks about well planned scheduled actions which are going to take place in very near future. Apart from that, there are many verbs. Okay, they are generally used in present simple tense. So we are going to deal with all these things in the next video. So thank you very much students. See you soon in my next video. Thank you. All right.